हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजय अग्रवाल आज एमसीए के विषय में कुछ जानकारी देने के लिए यहाँ प्रस्तुत हुआ हूँ। एमसीए मतलब मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। ये कोर्स इस साल से 2020 से सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2 इयर्स का कर दिया। अभी तक ये कोर्स 3 ईयर का चलता रहा, लेकिन कुछ इंस्टीट्यूशंस जो हैं उन्होंने अभी भी इसको 3 साल का ही रखा हुआ है। इसके विषय में कुछ आज बताने जा रहे हैं, इसकी एलिजिबिलिटी के विषय में, इसमें कौन कौन से इंस्टीट्यूट इन्वॉल्व हैं इंडिया में और इसमें क्या टीचिंग होती है। पहले एक वीडियो देखिए अनमोल मल्होत्रा का, जिसकी टॉप रैंक एनआईटी में आई थी, वो हमारी कोचिंग से पढ़ा हुआ था। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे एमसीए को। Hello everyone, myself Anmol Malhotra. I have done my MCA from MNNIT Allahabad. I have scored AIR 71 in MCA entrance examination. Today I just want to discuss about MCA, how to get to a good college in MCA, what are the opportunity a person doing MCA gets, and what are the companies that you get to enroll in. So, to start with, first of all I want to tell that I have done my MCA preparation from Sanjay Agarwal sir coaching, Sun classes. Actually, it's the best coaching which you can get for the MCA. Previously, I have also prepared for IIT JEE, and I have studied from many teachers there, from very good teachers like Vishnoi, and there are many teachers I have studied there. But how Sanjay Agarwal sir explained the concepts and how he just provide us a track to go towards the right direction to qualify for the NIMSET is the best in the class, and that's what I want to tell. Second thing, once you get to an MCA, if you want to get a very good college like NITs and NIT Allahabad, like NIT Trichy, you need to have a rank from 0 to 250 in the general category, and the bar just gets a bit bigger for the OBC and SC/ST category. So as you get to the MCA, you get the syllabus. The syllabus is actually the same as the BTech CSIT. You get to study networking, you get to study data structure, you get to study algorithms, you get to study C++, Java, Python. These are all things that you will study at MCA. One of the very important thing is like what the professors are there at MNIT Allahabad who just give classes to the BTech CSIT are also the same for the MCA. So that's a very good thing. You get to learn from the best in class professors from a good NIT, and you get the same syllabus, you get a very good teaching, and the course is of 3 years. I have done 3 years course like 2017 2020. So it's a very good course, and as once you get to the placement sessions, you get very good companies like Morgan Stanley, Goldman Sachs, JP Morgan Chase, you have Microsoft coming there, you have Facebook, you have Deloitte, you have Paytm, you have Flipkart, you have Myntra. There are tons of companies you get an opportunity to get crack, and the CTCs are very good. It's like a journey which can lead you towards a true future that you want to live. And I want to say one more thing, like if you want to get to a good college in MCA, just go for the Sanjay Agarwal sir. As I will suggest Sanjay Agarwal sir, I have studied there and I have taken the courses from other teachers as well, and I have found the simplicity of Sanjay Agarwal sir and the track he provides is the best in class. And for myself, like I'm personally right now doing as is in the business technology analyst at Deloitte USI. It's also a very good company, and there are many good companies that come for the good NIT. So once you have the track for MCA, you are going to get towards very good colleges, very good companies. And one of the very important thing for MCA is like for the BTech JEE mains, you have to qualify JEE mains to get to a very good NIT. But in MCA, the NIMSET examination doesn't have that much competition to get to MCA. So it's actually a path that's actually quite easier than JEE mains, which leads you towards the same goal, and you get to compete with the BTech students there. If you have done BSc or BCom or anywhere, like you want to build a career in the field of computers and you want to get a good package, you can go for MCA. And by enrolling in the good coaching and the good place where you can get the right things is actually the requirement which can lead you towards a good NIT, and at the end a very good future with a very good company, and your life is being settled down. Thank you so much. अभी आपने अनमोल मल्होत्रा का वीडियो देखा। इस वीडियो में उन्होंने एमसीए में क्या कोर्सेस होते हैं, क्या पढ़ाया जाता है और इसके प्लेसमेंट कैसे हो रहे हैं, इसके विषय में जानकारी दी। अब यहाँ पर हम कुछ बताने जा रहे हैं इससे एमसीए कोर्स की एलिजिबिलिटी क्या होती है और इंडिया में कौन कौन से इंस्टीट्यूट एमसीए में रन कर रहे हैं जो टॉप इंस्टीट्यूशंस हैं।
एमसीए की एलिजिबिलिटी देखें तो एमसीए की एलिजिबिलिटी में ग्रेजुएशन इन एनी सब्जेक्ट होना चाहिए। 12th में मैथमेटिक्स कंपलसरी है। अगर ग्रेजुएशन में मैथमेटिक्स नहीं है, इस कंडीशन में अगर ग्रेजुएशन में मैथमेटिक्स है कोई भी एक सब्जेक्ट, तो एमसीए एंट्रेंस में अलाउड है। और बीसीए स्टूडेंट को भी अलाउड है। जो स्टूडेंट बीसीए करते हैं उनको लिए भी एमसीए एंट्रेंस में अलाउड है। अब अलग अलग इंस्टीट्यूट में कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग अलग होते हैं। जैसे एक एग्जामिनेशन होता है निमसेट का, जो कि एनआईटीज़ के लिए होता है। अब एनआईटीज़ क्या होते हैं, इसको बोलते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। हर एक स्टेट में एक एनआईटीज़ होता है। जैसे यूपी स्टेट में इलाहाबाद में है, जिसका नाम है मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ऐसे ही मध्य प्रदेश में भोपाल में इसका नाम है मौलाना आज़ाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। निमसेट का निमसेट एग्जामिनेशन का होता है। इसकी जो एलिजिबिलिटी होती है वो 60% ग्रेजुएशन में मार्क्स होने चाहिए। इसमें जो टोटल सीट्स हैं वो 867 सीट्स हैं। इसमें 10 एनआईटीज़ इन्वॉल्व हैं, जो कि निमसेट के थ्रू अपने यहाँ एडमिशन्स लेते हैं। और 10 एनआईटीज़ में ही केवल एमसीए होता है, बाकी एनआईटीज़ में एमसीए नहीं होता है। ऐसे मेजर इंस्टीट्यूट जेएनयू है, जो न्यू दिल्ली में, इसकी एलिजिबिलिटी 55% की है। सिमिलरली बीएचयू जो वाराणसी में एक स्कूल है, इसकी 50% एलिजिबिलिटी है। जेएनयू में लगभग 40 सीट्स हैं और बीएचयू में 47 + 31 सीट्स हैं। 41 सीट मेन कैंपस में है और 31 इनका एक्सटेंशन सेंटर है, जो मिर्ज़ापुर में है। डिग्री बीएचयू की मिलेगी, लेकिन मिर्ज़ापुर कैंपस की फ़ीस ज़्यादा होती है, इसको एक्सटेंशन सेंटर बोलते हैं। ऐसे और बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे इसमें मदन मोहन मालवीय गोरखपुर है, यूपी सीट का एग्ज़ामिनेशन होता है, पुणे यूनिवर्सिटी है, हैदराबाद यूनिवर्सिटी है। ऐसे ही देश में बहुत सारे एग्ज़ामिनेशन एमसीए के गवर्नमेंट के होते हैं। कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूट भी अच्छे हैं, लेकिन प्राइवेट इंस्टीट्यूट की फ़ीस जो होती है वो ज़्यादा फ़ीस होती है। इसलिए प्राइवेट इंस्टीट्यूट में अगर एडमिशन लेना हो तो फ़ीस अप्रॉक्सीमेट 2.25 लाख रुपए पर ईयर के आसपास की फ़ीस होती है। एमसीए अभी तक 2019 तक जो था, एमसीए 3 ईयर का होता था। इस साल से सेंट्रल गवर्नमेंट ने एमसीए को 2 साल का कर दिया है, 2 साल का कोर्स कर दिया है। लेकिन अभी कुछ इंस्टीट्यूशन ने इसको 3 ही साल रखा है। जैसे 2020 के लिए एनआईटीज़ ने अभी 3 ईयर का ही एमसीए कोर्स रखा है। 2021 में क्या होगा, इसके विषय में भी कोई जानकारी एनआईटी ने नहीं दी है। अधिकतर इंस्टीट्यूट ने सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर को मानते हुए 2 ईयर एमसीए कोर्स कर दिया है। प्लेसमेंट की बात करें तो प्लेसमेंट इसमें बहुत टॉप इंस्टीट्यूट्स में है, जैसे कि बड़ी बड़ी कंपनियाँ आती है, कैपजेमिन है, टीसीएस है, विप्रो है, ट्रायोलॉजी है, माइक्रोसॉफ्ट है, डिलॉयट्स है, नेट ऐप है। ऐसे करके बहुत सारी कंपनीज हैं जो टॉप इंस्टीट्यूशंस में आती हैं। पैकेज अप्रॉक्सीमेट 5-6 लाख से लेके 20 लाख तक का पैकेज है, जो एलिजिबिलिटी और इंस्टीट्यूट के ऊपर डिपेंड करता है। अब अपनी कोचिंग के विषय में थोड़ा बता रहा है। हमारी कोचिंग पिछले 27 साल से कानपुर में 2 जगह पर रन हो रही है, एक काकादेव में और गोविंद नगर बद्रा में। तो जो हमारी कोचिंग है, इसमें पिछले 27 साल से हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो जितने भी कानपुर से टॉप एनआईटीज़ में, जेएनयू या बीएचयू में, वो हमारी कोचिंग से आए हुए हैं। एक वीडियो जो हमने अभी अनमोल मल्होत्रा तक लगाया था, इसकी भी एनआईटी में टॉप रैंक आई थी, जिसने एमए एनआईटी इलाहाबाद से एमसीए किया हुआ था। जो हमारे कानपुर में 2 सेंटर हैं, एक काकादेव में, एक बद्रा में है। यहाँ ऑफलाइन कोचिंग होती है हमारी। इसके जो फ़ोन नंबर्स हमारे हैं वो नीचे वीडियो में लिंक में लगे हुए हैं, उससे फ़ोन कर सकते हैं हमको। बाकी ऑनलाइन कोचिंग का भी इस साल से चालू किया हुआ है। जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं या ऑनलाइन कोचिंग पढ़ना चाहते हैं वो भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। इस बार ऑनलाइन कोचिंग भी हम स्टार्ट की है हमने। वैसे तो अभी हमने जो लास्ट ईयर के स्टूडेंट थे उनको मार्च से लेके और जुलाई तक हमने ऑनलाइन पढ़ाया हुआ है। इस बार एक नया बैच ऑनलाइन भी चालू करेंगे, जो इवनिंग बैच होगा। तो जो स्टूडेंट्स कोचिंग में फिजिकली रूप से नहीं आ सकते वो ऑनलाइन कोचिंग भी कर सकते हैं।
और जो स्टूडेंट बाहर के हैं, जो कानपुर में नहीं बिलोंग करते, उनको आने में, कानपुर में रहने में प्रॉब्लम्स है, वो ऑनलाइन कोचिंग भी कर सकते हैं। जो ऑफलाइन कोचिंग करेंगे उनको ऑनलाइन की कोचिंग की सुविधा भी निःशुल्क दी जाएगी, ऑफलाइन की फ़ीस में ही। और एमसीए के विषय में कोई भी क्वेरी हो, इसके प्लेसमेंट संबंधित, एलिजिबिलिटी संबंध, कोर्स से संबंधित, वो हमको फ़ोन पे संपर्क कर सकते हैं। कोर्स जो होता है वो नॉर्मली 12th मैथमेटिक्स का कोर्स होता है, कुछ पार्ट बीएससी और बीसीए का भी आता है और कुछ पार्ट कंप्यूटर में होता है, जो कि हम कोचिंग में अपने मैथमेटिक्स, कंप्यूटर और रीजनिंग तीनों कवर करते हैं। तो इसलिए अगर कोई और भी क्वेरी हो तो वो हमसे फ़ोन करके क्लियर कर सकते हैं।